We have all gathered here to participate in a webinar on mental health and well-being during pandemic and post COVID-19. This actually is a small step to get our friends out of the distressed times and find positivity in life. Proceeding further, I request our worthy principal, Dr. Pargat Singh Garcha, to formally welcome our revered presenters and passionate participants to the webinar. Dr. Pargat Singh Garcha, please. Thank you, Dr. Manu. Very good morning to the august audience of the webinar. I extend the heartiest welcome you all on behalf of the Management Committee and Faculty of GHG Khalsa College of Education, Guru Sir Sudar. The college is serving the society since 1955 and has been a witness to all the ups and downs in the field of education since the last 6 decades. As someone has rightly said, हवाओं के साथ रिश्ते बड़े पुराने हैं, फिर भी चिराग तो हर हाल में जलाने हैं. So we know that the present crucial period of pandemic is a time which nobody had ever thought of. The pandemic has realized us that after 7 decades of independence, we were not in position to install ventilators in each government hospital at district or tehsil level. This is just one example. You might have seen many in your respective areas and fields. So in past few months, the present exceptional situation of corona pandemic has raised many questions before all of us. The issue of bread and butter in lockdown, the fear of losing the jobs, stress of online teaching and learning, fear of getting infected by the corona, health problems in lockdown period, uncertainties by the authorities, the issue of living with corona are some of the issues we are facing many times a day. COVID-19 preventive measures have a visible impact on psychological and mental well-being of all the individual across the society. Mental health issues like suicide, self-harm, substance abuse, and domestic and child abuse are reported in some of the news channels and newspapers, and we are seeing such news on social media too. Closure of schools and universities has caused significant disruption to daily routine of the students. The rise of anxiety, depression, and self-reported stress are affecting the well-being of individuals. This is the right time to ponder over the issues like the effect of outbreak on our psychological and mental well-being, coping strategies to manage stress, and skills to manage physical, emotional, and occupational well-being during the pandemic and post-pandemic times. Through the webinar, GHG Khalsa College of Education, Guru Sudar is providing a platform for thoughtful deliberation among all of you. In today's webinar, we have young and energetic speakers from India and South Africa. And on the other hand, we have a participant from 16 states of India and 3 countries, England, Canada, and South Africa. So we all can ponder upon a vital and very relevant topic, mental health and well-being during pandemic and post-COVID-19. As we would have among us today academicians, faculty members from schools, colleges, and universities, prospective teachers and research scholars. So I would like to quote here Ms. Helen Caldicott view that teachers, I believe, are the most responsible and important member of the society because the professional efforts affect the fate of the earth. So you all are having the potentials to change the fate. So I welcome all the responsible member of the society who are makers of future and who would very efficiently steer out the society from the ill effects of pandemic. I extend a warm welcome to all the speakers of the webinar.
I'm starting with Dr. Shruti Shari, Associate Professor, Department of Psychology, DAV College, Chandigarh, who would present the keynote address in the webinar today. I also welcome Ms. Chetanpreet Nilon, Assistant Professor, Department of Public Administration, DAV College, Chandigarh, who is also an international sports person and would ponder upon the importance of physical well-being. Ms. Jasleen Kaur, who is a clinical dietitian from South Africa, and she would discuss with you the topic emotional well-being and mindful eating. And our own faculty member, Dr. Manu Chadha, Associate Professor, will share her views about well-being at workplace. So we are very hopeful that we will see the present situation from different perspective and try to find out the strategies to tackle the situation in an effective way. मत सोच के हमने हौसला छोड़ दिया दोस्त, मत सोच के हमने हौसला छोड़ दिया दोस्त, हमने लौट के आने का हुनर लहरों से सीखा है, हमने लौट के आने का हुनर लहरों से सीखा है. So we will be back in our routine life with good mental and physical health and help others to come out of this pandemic as early as possible. So be positive and enjoy the academic discourse in the webinar. So once again, I humbly welcome all the resource persons and all the participants across the world to this webinar. Thank you. Over to Dr. Manu Chadha. Thank you, Dr. Pargat. Today, when the whole world is afflicted with grief, pain, sufferings, hardships, and negativity, the question that again and again strikes our mind is, are we capable of keeping ourselves positive and composed while being clouded by negative vibes from all directions? Or are we just being pessimistic, letting ourselves drown into this ocean of negative thoughts that surrounds us at all times? Remember, positivity pulls you up and never lets you down. To enlighten us and inspire us and guide us to cope with unprecedented challenges of mental well-being, we have a learned personality among us. It is a great pleasure for me to introduce our keynote presenter, Dr. Shruti Shari, who is going to talk to us about mental health and well-being during pandemic and post-COVID-19. Madam, welcome to the webinar. A brief profile of ma'am. Madam is working as an associate professor of psychology, Department of Psychology, DAV College, Chandigarh, and has a teaching experience of almost 22 years. She is doctorate in psychology under the UGC JRF scheme. Her primary area of research was role of stress, coping, social support, and personality in diabetes management, and has been awarded for the best doctoral work in 2005. She has also been awarded with a National Scholarship in Psychology in her master's under the Government of India National Scholarship Scheme. Ma'am has been conferred with the Rashtriya Gaurav Award by the Indian International Friendship Society by His Excellency Shri Bhishma Narayan Singh, former Governor of Kerala and Tamil Nadu. Madam is a gold medalist in Bachelor's and Master's in Psychology, winner of National Institute of Technical Teachers Training and Research, Indian Academy of Applied Psychology. She has been awarded Best Papers for 5 of her compilations at national and international conferences. Dr. Shruti Shari has to her credit 4 national level research projects and a major research project by UGC in sports psychology. Ma'am has worked as a Chandigarh coordinator for AIDS prevention project called School-Based Teenage Education Program in collaboration with Albert Einstein College of Medicine of Yeshua University, US, and Society for Mountain Development, India. Dr. Shruti, besides being an excellent researcher, is also a passionate and dedicated research guide. 2 of her PhD students
have been awarded their doctoral degree and 2 have submitted their thesis, while 6 are pursuing under her able guidance. Ma'am is a life member of 8 national and international professional psychological bodies and associations and is on the editorial board of Indian Journal of Psychology. Ma'am has presented approximately 70 research papers, published 52 papers and articles, 75 conferences and academic sessions at local, national, and international levels. She has conducted more than 80 training workshops for varied audience ranging from lawyers, students, school and college teachers, principals, police officers, social workers, and sports persons. I feel she hasn't left any audience that is yet to be targeted. Ma'am is a UGC certified trainer for capacity building programs for women in her higher education. Friends, the list of her credentials and expertise is endless, and I believe after being acquainted with her credentials, you must be eagerly waiting to interact with an amazing and a charismatic personality. Once again, a warm welcome, Dr. Shruti Shauri. We are grateful to you, ma'am, for graciously and readily accepting our invitation. Over to you now, ma'am, for your expert views. Just a humble request for the participants. If you have any questions during presentation, please type them in the chat box. Please do not put your questions in the WhatsApp group. Type them in the chat box, which will be taken in the Q&A session after the second presentation. Ma'am has very humbly, will be there with us throughout the session. She is ready to stay with us, so you can just type your questions. Over to you now, ma'am. Welcome once again. Thank you so much, Dr. Manu, for such a gracious introduction. I hope I'm audible. Yes, ma'am, you're audible, yes. And your screen is also visible. Perfect. Yes. Great. So, indeed, I'm extremely honored to be here amongst all of you. And in this long introduction, one thing that I always identify with is my being a teacher, like a lot of you. So definitely we are all in the same boat. We are all teachers and we are all in the process of, trying to learn newer things, do better in the given times and always. So I would like, first of all, thank Dr. Manu Chadha, team at IQAC at her college, and Principal Study for. Hello. Ma'am, there is a snag in Am your. I? No, ma'am. Your voice is breaking. Is it okay now? I can hold the speaker close to my mouth. Is it okay? You may go ahead. If it breaks again, then I think you can put yes. off your video. Then you can put off your video if it breaks. Yeah. All right. Okay. Let me know whenever there's a snag. Yes, sure. All right, so I'll come straight to the point. I'm here, I'm in great honor to be giving the keynote today at the international webinar on mental health and well-being. So this, of course, is not a training program, but I will try and still kind of leave you with a few things that I feel are very, very important when it comes to managing our mental health and well-being during these times. So if you look at the present year 2020, we started with great hopes, great dreams for this year, great plans for this year. Everybody had one thing or the other coming up. But what has this year landed us in? I'm sure you have a lot of things that come to your mind. You can, of course, write about your responses here and there in the chat box, though we will take the questions and queries in the end. But the year 2020 is now and will in future be infamously known as the year of COVID-19, for the simple reason that we have seen a lot of changes all around us. Masks are there, online classes are there, social distancing is there. And, the image of Corona, which we could have just passed off as a nice digital print, has a new meaning for all of us. And definitely when we talk about the Corona times, there are lots of things that are happening around us.
I'll just take you through to some. I'm sure some must have come to your mind. This year, we have, of course, seen the pandemic leading to a lockout, uncertainty, quarantine, social distancing, masks, need to sanitize, economic slowdown, online classes, no exams or postponed exams, our health concerns, our plans for traveling have been cancelled, the issues of migrant laborers are all over, and a lot of webinars. I'm sure we have all been through this till now in this year, and since this epidemic has been there, pandemic has taken us over, and all of these things have led to a lot of psychological issues. Of course, you have heard a lot about these, so I'm spending lesser time on what is ailing us right now. There is anxiety, there is fear, there is depression, panic, loneliness, hopelessness, aggression, disease, post traumatic stress, increase in substance abuse, low self esteem, insomnia, reduced sleep quality, poor sleep quality, irritability, disturbed work life balance, and in a lot of unfortunate cases, death of a near one, a loved one. So the two bars on the screen can clearly I've just tried to bring in everything that's happening to us right now in the outer world and in the inner world. And indeed, when I say that we have had the pandemic and a lot of webinars, I think there's this meme that has been doing rounds nowadays. There are two things: COVID is a pandemic, and webinars are at an epidemic stage. So, welcome to another epidemic. That we are going to be here for another hour or so. But my earnest request is, don't cancel the year that has woken us up. Let's not do that. Let's not try to wish this year away, because it has opened our eyes. It has opened a lot of newer revelations for us. So if you look at different sources of suffering because of the pandemic, we can clearly, I think there are some hands being raised, Dr. Manu. Any issues with audio or video? No, ma'am. No, It's ma'am, okay. it's okay. It's perfect. Okay, great. So there are lots of sources of suffering, and I would like you to take a second and ponder whether this source of suffering and stress that we are facing is external or internal. External, of course, we are scared that we may get an infection. What will happen if we get infection? What is the treatment available? Will we face isolation? Will I lose my job? Will I have no money to feed myself or my family? And then a lot of our external suffering comes from the news, the distressing news. But the good news is that this external suffering is only 20% of the whole story. 80% of our suffering is internal, generated by ourselves. And what is that? There's a lot of discomfort, there's a lot of anticipation, worrying. Each one of us has a different response to the external reality. We may feel sad, we may feel depressed, we may feel anxious, scared, we may run into panic. All those things are internal within ourselves, and a clear indication that our mental health is at a particular risk. Okay, please have a look at this one and identify what stage of quarantine are you in. There are these 4 pictures: first, second, third, and fourth. We all started getting into the lockdown and the home lockdown quarantine, very gracefully, looking at all that was happening around us. But slowly, gradually, it has taken over. If you can't identify with any of these, images, there's more for you. Any of these images which you can identify with. Well, these are images of Mona Lisa, dear, but I'm sure men and women both can identify alike. I think a lot of us have lived our lockdown in a couple of pajamas and night suits, and a lot of our concerns about our physical appearance are reflected here. But mind you, the mental agony that we have gone through has slowly, gradually grown so much that now people are trying to call it, WHO is labeling this as the next big pandemic that humanity is going to face.
We must remember that we are in the same storm, the COVID storm, but we're not in the same boat. Our boats are different because it depends what we are doing with the given, how we are mentally dealing with the given COVID times, and what is our plan for the post COVID times. So just remember that being in the same storm does not guarantee, does not essentially mean that we are going to land up in the same the outcome will be same for us. We have learned one thing definitely in these times, that we have to embrace the uncertainty. There is so much happening around every day, new news. There are newer reports that are saying that corona is airborne, and then there are a lot of issues about postponing exams, the exit classes, their exams, etc., etc. And amidst all of this uncertainty, there is a lot of chaos, a lot of information input, which is driving us crazy. But my friends, we must remember that none of us is alone in this. We are not alone in this ever. And this gives us a sense of belongingness, a sense of being in the universal game. So give yourself a second and think about this one thing that makes you the happiest. What do you consider the biggest blessing of your life? And one thing for which you're ready to give up just anything. Think of, maybe one thing only for all these three, or you can have three responses, or maybe more. And when you've thought about these, one thing that gives you maximum happiness, the biggest blessing of your life, and something for which you will give up just anything in your life. What comes to your mind? You can, some of you can, if you're okay with that, you can write in the chat box what comes to your mind when I urge, what is that one thing that gives you happiness? Any responses in the chat box? Can I look at my family? Okay, great, Dr. Karanveer. Yes, I'm still waiting for a few more responses before I go on. Family for all. That's awesome. Vibha Chavla ji saying family for all. Family, family, family. Awesome. Good health, safe homes. That's awesome. That's exactly what we are looking for. So there are things that we are, of course, extremely happy for. There are things that still determine our happiness in these uncertain times. And I was very confident, like a lot of you, about the responses. And when I try and think about things that come to your mind, they are family, friends, partners, children, parents. They are people. They definitely are people. They're people who are close to you. They are your family. Some people do mention pets also. So definitely these are responses that are given by people across the globe, everywhere. One thing that determines our happiness is our family, our people close to us, and health. Like somebody here also mentioned, health, safe homes, the very blessing that we have a safe shelter on our heads, we have clothes to wear, we are safe, we can afford medication. All of this is a blessing. All of this is something that is very critical. So none of you thought of Wi-Fi, did we? I'm sure nobody thought of having an uninterrupted, cheaply priced Wi-Fi. No, we did not think of money either. We did not think of money. We did not think of Wi-Fi. We did not think of a lot of tangible things that we spend a lot of time in our lives on. So there's this very famously known study that was done. I'm just going to share the finding with you here. It is called the deathbed test. A lot of people were asked by this group of researchers, what is that one thing that you want to do in the last 5 minutes of your life? 5 minutes before you're dying, what is your last wish? I think बहुत famously बड़े सारे movies का dialogue है कि अच्छा अपनी आखिरी इच्छा बताइए हम पूरी करेंगे. So here people were asked that imagine that you're about to die in 5 minutes. What is it that you want in these last 5 minutes? Again, people from cradle to grave, no matter what age, what stage, what gender, what country they were in, they remembered or they wanted their last wish to be
oh, I wish I had spoken to him. I wish मैंने उनसे बात की होती. I wish मैंने अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया होता. I wish मैंने अपने पेरेंट्स को ये कहा होता, etc., etc. Again, it is family, it is relationships that are considered the most important thing that revisits us when we are about to end our life, when we are about to die. So my plea is don't wait for those last 5 minutes. My first important resource that I want to bring home here is the importance of relationships, the importance of connections that we build throughout our life. They are our biggest resource. And I'm going to emphasize this still more in a while. But because I feel this is like my point number one, my takeaway number one, I really wanted to start with connections, the importance of relationships. So remember that we all need relationships. We are happy and blessed that we have many in our lives, and they are responsible for our happiness because we human beings are wired, we are programmed to connect with each other. Affiliation, एक दूसरे के साथ रहना, belong करना, सोशल सपोर्ट, इकट्ठे रहना, ये सब चीजें हमें इकट्ठे बांध के रखती हैं और हमें लाइफ में बहुत हेल्प करती हैं टू गो ऑन. And it's important that these relationships thrive because there's a lot of love. The only way that we can save the world is to love the world. And we really need people, Dr. Pargaji said that as teachers, we have this huge role in this times, in the present times and the world where things are changing, roles are changing, online education is coming up. Trust me, our role only kind of aggravates the gravity of our importance of being teacher is much more. Relationships have been responsible for our biggest joys and our deepest sorrows. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज लाइफ में रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो आपको बहुत खुशी दें या बहुत दुख दें, लेकिन वो डेफिनेटली स्ट्रेस और इलनेस के बीच के रिलेशनशिप को जो चीज डिटरमिन करती है वो आपके सोशल रिलेशनशिप्स हैं. आपके जीवन में स्ट्रेस बहुत होगा पर सोशल सपोर्ट होगा तो आप देखोगे उस स्ट्रेस का असर आपके ऊपर कम पड़ेगा. आपके जीवन में स्ट्रेस ज्यादा है और सोशल सपोर्ट नहीं है तो आप में कोई इलनेस हो सकती है. बहुत सारी रिसर्च ने दिखाया है, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, कैंसर, इन सब डिजीजेस में जो कि मेडिकल डिसऑर्डर्स हैं, इन सब डिजीजेस में स्ट्रेस, सोशल सपोर्ट और इलनेस, इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप है और सोशल सपोर्ट इस रिलेशनशिप को घटाता है, आपके स्ट्रेस को बीमारी में नहीं बदलने देता. तो जरूरी है ये जानना कि हमारे रिलेशनशिप्स, हमारे कनेक्शंस आर vital for health and happiness. So we know we have all ran into a universal timeout. I'm sure साइकोलॉजी के लोग टाइम आउट शब्द बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. टाइम आउट का मतलब होता है जब हम अपने बच्चों से नाराज़ होते हैं तो हम उनको एक कोने में बंद कर देते हैं या वॉशरूम में बंद कर देते हैं ये कह के कि अब तुमसे कोई बात नहीं करेगा. तो हम उनको टाइम आउट देते हैं ताकि वो थोड़ी देर अलग रहें और शायद सोच पाएं कि क्या करना है उनको. इट्स लाइक अ पनिशमेंट. इस वक्त पूरी ह्यूमैनिटी को ये टाइम आउट मिला हुआ है नेचर के द्वारा. और इस टाइम आउट में रहते हुए, इस यूनिवर्सल टाइम आउट में रहते हुए हम लोग बहुत सारा कुछ महसूस करें, एंजाइटी, डिप्रेशन, बहुत डाउट करना, सस्पिशन, पैनिक. और इस पूरे चीज़ में हमने मास्क पहन लिए, अपने दरवाजे बंद कर लिए, लोगों को घर में नहीं घुसा रहे, उनसे दूरी से बात कर रहे हैं. और इस न्यू नॉर्मल में ये बहुत बड़ी प्रिडिक्शन WHO की आई है लेटली दैट द नेक्स्ट बिग पैंडेमिक दैट वी आर गोइंग टू फेस इज मेंटल इलनेस. हम में से बहुत सारे लोगों को एंजाइटी होगी, हम में से बहुत सारे लोगों को सैडनेस होगी जो कि शायद क्लिनिकल डिप्रेशन भी बन सकती है. तो ज़रूरी है ये याद रखना कि जब कोई क्राइसिस आता है तो पहली चीज़ जो जिस पे असर पड़ता है वो हमारी मेंटल हेल्थ है. एंड आयरॉनिकली ये मेंटल हेल्थ ही है जो हमें बचा सकती है इस क्राइसिस से, हमें इस क्राइसिस से बाहर निकलने में मदद कर सकती है. सो बहुत सारे रिसर्च अगर आप भी ज़रूर पढ़ रहे होंगे सोशल मीडिया पे और बहुत सी न्यूज़ रिपोर्ट्स आती रहती हैं जहाँ लोग कहते हैं अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा रूटीन में बांध के रखिए. वी ऑल हैव सीन दैट कोरोना टाइम्स हैव ब्रॉट अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी. बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें पता नहीं कि क्या हो रहा है हमारे साथ. सो इस अनसर्टेनिटी को सही करने के लिए या अपने दिमाग को उसके साथ एडजस्ट करने के लिए एक पहला तरीका है कि इस अनसर्टेनिटी को हम कोई स्ट्रक्चर के साथ काउंटर करें. स्ट्रक्चर का मतलब that we have to live by routines. Pick up some structure, some routines through your days. और क्या क्या स्ट्रक्चर हो सकते हैं, बहुत रॉकेट साइंस नहीं है. अपना खाना न्यूट्रिशियस खाएं,
टाइम पर खाएं, फिजिकल एक्सरसाइज ज़रूर करें। चेतन आज की जो मेरे बाद जो रिसोर्स पर्सन है वो ऑफ कोर्स फिजिकल वेलबींग की बात करेंगे, उसमें एक्सरसाइज ज़रूर आएगा। अपनी नींद का ध्यान रखें, सही समय पर सोएं, सही घंटों के लिए सोएं, सोशली कनेक्टेड रहें, इंटरनेट के द्वारा, वीडियो कॉल्स के द्वारा, जूम कॉल्स के द्वारा स्टे कनेक्टेड टू पीपल। ये सिर्फ फिजिकल फासला रखना है, सोशल फासला हमें नहीं रखने की ज़रूरत, फिजिकल बॉडीज का फासला रखना है हमें। सो पॉजिटिव थिंकिंग अपनाएं, ऑप्टिमिस्टिक रहें, निराशावादी ना हो, शुक्र करें, ग्रैटिट्यूड करें, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ पे बिल्ड करें, सेल्फ कंपैशनेट हों, चीज़ों को स्वीकार करना सीखें जो एक बहुत बड़ी प्रैक्टिस है, और अपनी रेजिलियंस बढ़ाएं। शुरू में प्रिंसिपल साहब ने कहा कि हमने वापस लौट आने का हुनर लहरों से सीखा है। यही एक रेजिलियंस की एफर्मेशन है कि हम सब वापस आएंगे, वी विल बाउंस बैक टू द बेस्ट सेल्व्स एंड ऑफ कोर्स माइंडफुलनेस। ये जितनी चीजें अभी आपके स्क्रीन पर हैं, इन सब चीजों को अगर आप अपनी रूटीन में ला रहे हैं, यू विल क्विकली सी कि आप बहुत अच्छे से कोप कर पाएंगे अनसर्टेनिटी से। एंड आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी दैट दिस इंटरनेशनल वेबिनार इज already talking about these three things that I have listed in red. खाने के ऊपर, डाइट के ऊपर, ईटिंग वेल के ऊपर एक सेशन है, फिजिकल वेलबींग और एक्सरसाइज के ऊपर है, माइंडफुलनेस एट वर्क प्लेस के ऊपर है, और ये सारी चीजें आपकी फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल वेलबींग को बढ़ाती हैं। सो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आपको बहुत सारे पॉइंटर्स, बहुत सारे टेक अवेज मिलेंगे, बट ऑलवेज रिमेंबर व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स, बिकॉज ये एक बहुत जानी मानी बात है कि डर और एक्शन इकट्ठे एक मयान में, ये दो पिकअप आपको आई एम श्योर इन 2 दिनों में बहुत सारे ऐसे टिप्स या बहुत सारे ऐसे एक्शन प्लान्स या एक्शन ट्रिगर्स मिलेंगे। जो आपको सूट करता है, जहां से सूट करता है, वो चीज के साथ शुरू करें, एंड स्लोली ग्रेजुअली यू विल सी जैसे आप एक रूटीन में रिस्टोर करने में मदद करती हैं। और ये सारी की सारी चीजें ना सिर्फ अभी कोरोना टाइम्स में, बल्कि कोरोना से बाहर निकलने के बाद भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा एंकर, एक बहुत बड़ा सहारा, एक बहुत अमेजिंग प्रैक्टिस रह सकती है। इसको शॉर्ट फॉर्म में याद करने के लिए हम कहते हैं परमा, PERMA। ये क्या क्या इनका मतलब है, ये मैं अगले कुछ मिनट में आपसे बात करने वाली हूँ। ये स्लाइड पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक लग रहा है, बहुत सारा रश है, घबराएं नहीं, मैं एक एक चीज को डील करूंगी। P स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव इमोशन, कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं वो। एंगेजमेंट, कि आप किसी भी काम में कितना एब्जॉर्ब होके कर रहे हैं, E स्टैंड्स फॉर एंगेजमेंट। परमा का R स्टैंड्स फॉर रिलेशनशिप्स, जिसकी मैंने शुरुआत में भी बात की, आगे भी थोड़ी सी और बात करूंगी। M stands for मीनिंग, कि आप किस तरह से सार्थकता तलाश करते हैं, कैसे आप अपनी लाइफ में मीनिंग ला सकते हैं। एंड A stands for अचीवमेंट एंड अकम्पलिशमेंट, कि आप जीवन में किस तरह अपनी अचीवमेंट्स को बढ़ा सकते हैं। एंड दिस परमा इज समथिंग लाइक अ डेली डोज दैट वी नीड टू टेक। सो आप अगर इसको एक हैंडी सी ढंग से अपनाएंगे, कि आप इन पांचों चीजों में को एक एक बार पांचों चीजों को रोज प्रैक्टिस करेंगे, यू विल सी दैट यू विल रियली कम थ्रू दीज टाइम्स वेरी इजीली। सो मैं परमा के साथ स्टार्ट कर रही हूँ, वन बाय वन। आई एम स्टार्टिंग फर्स्ट विद पी। पी स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव इमोशन। जो हम कहते हैं कि मैं आज खुश हूँ, आज मैं उदास हूँ, ये आपकी उस मोमेंट पर क्या इमोशनल स्टेट है उसको दर्शाता है। सो पॉजिटिव इमोशन का मतलब है ऑल योर हैप्पीनेस स्प्रिंग्स फ्रॉम पॉजिटिव इमोशन। हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? आप अपने आप को रोज सुबह उठ के एक बार पूछ सकते हो ये चीज, हाउ एम आई फीलिंग। आप कह दो अपने आप को कि 0 से 10 पे बताओ भाई कैसे हो, और आपका दिल दिमाग आपको कह सकता है आज थोड़ा मूड अच्छा नहीं है, आज एक बहुत लंबा चौड़ा फजूल का वेबिनार है, तो आपको शायद 3 लग सकता है, आपको शायद 10 लग सकता है, आपको शायद 5 लग सकता है, कुछ भी लग सकता है। सो जस्ट बी अवेयर कि आपको अपनी इमोशनल स्टेट को पहचानना है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं मैं एकदम चल पड़ती हूँ सुबह उठ के, पता नहीं कौन सी इमोशनल स्टेट है। सो उसके लिए आपको ये 5 पॉइंटर्स दिए गए हैं कि पूरे दिन में आप किसी भी स्टेट में हो, वापस पॉजिटिव इमोशन में आने के लिए और अपनी वेलबींग और मेंटल हेल्थ को सही रखने के लिए आप ये 5 चीजें कर सकते हैं। क्या है वो 5 चीजें? पहली है एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड हम सब समझते हैं, थैंक यू कहना, ग्रेटफुल महसूस करना, किसी चीज के लिए धन्यवाद महसूस करना, शुक्राना करना। सो
बहुत सारे रिसर्च ने क्लियरली दिखाया है कि वो लोग जो खुश हैं, अगर आप उनसे पूछोगे, उनको मेजर करोगे कि वो खुश हैं, क्या क्या करते हैं, पीपल हु आर हैप्पी आर ग्रेटफुल. इट्स नॉट दैट दे हैव मच मोर. जिन लोगों के पास, जो लोग शुक्र करते हैं, जो ग्रेटफुल होते हैं, वो खुश भी ज्यादा होते हैं. और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही, कोई आई थिंक हमारे स्क्रिप्चर्स में तो लिखा ही हुआ है, पर अभी साइंटिफिक स्टडीज करी जा रही हैं जहां पर क्लियरली आया है कि अगर आप सोचकर 21 दिन की एक प्रैक्टिस अपनाएं कि हर रोज आप 3 चीजें लिखेंगे या 3 चीजें याद करेंगे जो, जिनके कारण आपको लगता है कि आई एम ब्लेस्ड, जो आपको लगता है शुक्र है भगवान का. जैसे हमने शुरू में बात की, फैमिली, खाना है, हेल्थ है, काम है, ये सब चीजें जब हम इनको याद करते हैं तो आपके ब्रेन के जो नर्वस सिस्टम के जो कनेक्शंस हैं, न्यूरॉन्स के जो कनेक्शन है, जो सर्किट्स हैं, वो सब बदलने लग जाते हैं. योर ब्रेन स्टार्ट्स रीवायरिंग, और वो बदल कर आपको हैप्पीनेस की तरफ लेकर जाते हैं, आपको मेंटल हेल्थ की तरफ लेके जाते हैं. तो पहला इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस, और दिस इज लाइफ चेंजिंग. आप जब कभी बहुत परेशान, बहुत सैड होते हो, बहुत आपको लगता है कि क्या चल रहा है लाइफ में, जहां देखो यही बकवास हो रही है, यही न्यूज आ रही है, एक सेकंड लें और अपने, और एक ऐसी चीज सोचे जिसके लिए आप थैंकफुल हैं, जस्ट वन ब्लेसिंग, एंड यू विल सी आप कैसे डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे उस नेगेटिव से पॉजिटिव में. तो आपने ऑटोमेटिकली वो एक स्टेप, वही जो मैंने बात की, फियर एंड एक्शन कैन नॉट को एग्जिस्ट. जैसे ही आपने एक्ट किया, आपकी वो नेगेटिव इमोशन, आपकी वो हेल्पलेसनेस जो है, वो पीछे हट जाएगी. So first way to ensure positive emotion is gratitude. Second is vary your positive emotions. जब जो मैं पॉजिटिव इमोशन की बात कर रही हूँ, ऑलवेज रिमेंबर कि खुश रहना एक चॉइस है. हम में से बहुत से लोग कहते हैं मेरी लाइफ में कुछ सही नहीं हो रहा, आप कैसे कह रहे हो खुश रहो खुश रहो खुश रहो, नॉनसेंस है. लोग बहुत आसानी से कह देते हैं बी पॉजिटिव, बट रिमेंबर आप हर गिवन मोमेंट में जो भी हमारे साथ हो रहा है, पेन is an event, suffering is a choice. एक ही चीज पर जब हम बार बार रोते रहते हैं, तो हम अपने आप को खुशी से दूर और दुख के नजदीक लेके जाते हैं. सो हैप्पी रहने के लिए जरूरी है अपना फोकस चेंज करना. अगेन लुक फॉर थिंग्स दैट आर हैप्पी, दैट आर गुड अबाउट यू, दैट यू आर ब्लेस्ड अबाउट. जब आप नेगेटिव के ऊपर फोकस करेंगे तो आपका ध्यान, आपकी इमोशन नेगेटिव पर ही जाएगा. तो हम, हमारे साथ जो भी कुछ होता है, वो बहुत दफा हमारी चॉइस होती है. और व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट चॉइस, ऑलवेज रिमेंबर इन अ गिवन सिनेरियो देयर ऑलवेज आर थिंग्स दैट यू कैन कंट्रोल एंड देयर ऑलवेज आर थिंग्स दैट यू कैन नॉट कंट्रोल. तो वो चीजें जो आपके कंट्रोल में हैं, उनके ऊपर एक्ट करें, उनके ऊपर काम करें, इसके बजाय कि उन चीजों के बारे में सोचें जिनके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है. आपके कुछ ऐसे आपके आसपास के लोगों का बिहेवियर आप कंट्रोल नहीं कर सकते, पर आप अपना बिहेवियर, अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स, अपनी चॉइसेस, अपना एफर्ट, अपनी बाउंड्रीज, हर चीज को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं. एंड इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि जब आप किसी भी चीज के अंदर, किसी भी पर्टिकुलर स्थिति में, सिचुएशन में फंसे होते हैं, यू विल ऑलवेज सी दैट यू गेट स्ट्रेस्ड व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट थिंग्स दैट आर नॉट इन योर कंट्रोल. आप वो चीजों के बारे में सोचो जो, जिनके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं, और इस फोकस में आप भूल जाते हो कि आपके हाथ में अभी भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको बदल कर आप अपना नजारा बदल सकते हैं. देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल लाइन दैट गोज, नजरिया बदलने से नजारा बदलता है. सो चेंज द वे यू लुक एट थिंग्स. Focus on things that you can control and not on things that you cannot control. क्योंकि नाखुश या उदास रहने का मेन कारण सिचुएशन नहीं होती है, आपके थॉट्स होते हैं. आप एक चीज के घटने के बाद उसी में घुलते रहते हैं, जिसके कारण वो पर्टिकुलर चीज हमें ज्यादा परेशान करती है. बहुत कॉमनली लोग कहते हैं फिर कैसे करें, क्या करें नेगेटिव थॉट्स को. बहुत सारे तरीके हैं, इसके ऊपर एक फुल फ्लेजेड ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बने हुए हैं, नेगेटिव थॉट्स को कैसे हम काउंटर करें. एक बहुत सिंपल तरीका है ब्रीदिंग. आप जब सांस लेते हैं, उसमें आप जब थोड़ा सा माइंडफुलनेस, आई एम श्योर जब आप माइंडफुलनेस के ऊपर फुल फ्लेजेड बात करेंगे, इसके ऊपर ज्यादा बात होगी, आप 6-3-9 के पैटर्न में ब्रीद करें. मतलब जब आप ब्रीद इन कर रहे हैं तो काउंट 6 करें, 3 तक काउंट करें जब वो ब्रेथ आपके पेट में है, पेट के अंदर है, और उसके बाद एक्सहेल करें 9 के काउंट पे. सो ब्रीद इन 1 2 3 4 5 6, keep the breath in your stomach for a count of 3 3 2 1, और फिर 9 8 7
6, 5, 4, 3, 2, 1, ब्रीद आउट। जब आप ब्रीथ करते हैं, जब हम अक्सर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत से ऑर्गन्स को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती। तो एक चीज जो ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग करती है, आपकी पूरी बॉडी को जितनी रिक्वायर्ड ऑक्सीजन की मात्रा है वो पहुंचाती है, एंड इट टेक्स यू ऑफ फ्रॉम वेयर यू आर। जब कभी कोई नेगेटिव थॉट आता है आपको, आई थिंक हम सब ने खूब कपिल शर्मा का शो देखा है पिछले दिनों में, जब से भी आ रहा है। तो उसमें एक कैरेक्टर है जो पलक, जो वो हर चीज को कह देती है, एक हाथ दिखाती हैं और कहती हैं कि नो। सो जब आपको कोई नेगेटिव थॉट आता है, आपको भी उनकी तरह उसको नो कहना है, स्टॉप कहना है, यू हैव टू टर्न इट आउट एंड विजुलाइज करें कि वो थॉट डिसअपियर हो रहा है। हम जो चीज सोचते हैं वो हमारे ब्रेन में और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। तो जब आप ये कहोगे कि कुछ नहीं काम कर रहा, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ, तो आपका ब्रेन, आपका नर्वस सिस्टम उसी बात को मानने लग जाता है, जिसके कारण आपकी सैडनेस बढ़ती है, आपके अंदर स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ते हैं और आपको और ज्यादा बुरा महसूस होता है। इसलिए जब आप पॉजिटिव चीजें सोचेंगे, पॉजिटिव चीजें बोलेंगे, तो आप देखोगे कि आपका जो ब्रेन है वो उसी को रियलिटी मानता है। अगर बुरे और डिफिकल्ट टाइम में व्हेन आई स्टार्ट टेलिंग माई सेल्फ हो जाएगा, दिस इज पॉसिबल, आई थिंक आई कैन गो ऑन, तो आपके अंदर से ज्यादा हिम्मत आती है, आप उस चीज को ट्राई करते हैं। वाई? बिकॉज योर ब्रेन इज understanding and taking and interpreting the world as you are portraying it to the brain. So it's very important to change the way you talk to yourself. आप जो खुद से बात करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये डिटर्मिन करने में कि कि आपका ब्रेन कैसे उसको रिएक्ट करेगा। तीसरा तरीका पी, पॉजिटिव इमोशन को इंश्योर करने का है। लाइफ में उन चीजों के ऊपर अपना फोकस लेके जाएं जो अच्छी हैं, गुड थिंग्स इन लाइफ, योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, नींद, प्यार, लाफ्टर, अच्छी याददाश्त, हर चीज जो अच्छी है उसके ऊपर ध्यान करें। हीडोनिक एडेप्टेशन से हटें, ये भी पॉजिटिव इमोशन को इंश्योर करने का एक तरीका है। और हीडोनिक मतलब होता है, हीडोनिज्म शब्द का मतलब है प्लेजर, वो चीजें जो हमें अच्छी लगती हैं। कोरोना टाइम्स में हमने एक चीज तो रियलाइज की है कि हमारी नीड्स और हमारी वांट्स ये दोनों बहुत अलग चीजें हैं। वो चीजें जो एसेंशियल हैं, जो जरूरत की हैं, वो बहुत कम है, और वो चीजें जो हमने ऊपर पैराफिनीलिया बनाया, जिनसे हमें अच्छी लगती हैं, जो खरीदना लेना, जिनको हम जिनमें हमें सिर्फ प्लेजर मिलता है, वो हमारी वांट्स बन गई हैं। सो वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि एसेंशियल चीजें कम हैं। कोरोना ने ये हमें सिखाया भी है, एंड वी रियली नीड टू फोकस ऑन दिस कि ये जो हर वक्त की जो हम अपनी प्लेजर सीकिंग में लगे हुए हैं उसको कम करें। जरूरत सेब की है पर हमें चाहिए एक पूरा बंच ऑफ ओरियो बिस्किट्स। बच्चे ऐसा करते हैं पर हम बड़े भी ऐसा ही करते हैं कि हम अपनी वांट्स में इतना डूब गए हैं दैट वी फॉरगॉटन कि हमारी नीड्स तो बहुत कम थी। कोरोना टाइम्स में हमें ये भी याद रखना है, पोस्ट कोरोना भी, कि हम लोग कंज्यूमर्स का रोल तो बहुत साल हमने जी लिया। नाउ वी हैव टू बिकम रिस्टोरर्स। जो है उसको अच्छे से संभाल के रखें, जो है उसको जरा हम अच्छे से हैंडल करें। उसके बाद हम इस पूरी, जब मैं पॉजिटिव इमोशन की बात कर रही हूँ, मैं डेफिनेटली ये नहीं कह रही कि हमें सिर्फ खुशी रहना है, हमें सिर्फ पॉजिटिव ही सोचना है। अगर इंसान है, अगर दिमाग है, अगर लाइफ है, दिल अगर है, तो दर्द भी होगा, इसका कोई नहीं है हल शायद। तो नेगेटिव चीजें भी आएंगी, पर इंपॉर्टेंट है कि कैसे आपने नेगेटिव से पॉजिटिव में स्विच करना है, कैसे आपने इन दोनों का बैलेंस बना के रखना है, कैसे जब नेगेटिव चीज आए तो उसे एक्सेप्ट करके हमें ग्रैटिट्यूड के द्वारा अपने दिमाग को, अपने हॉर्मोन्स को एक पॉजिटिव स्टेट में लेके जाना है। जब जब हम उदास होते हैं, सैड होते हैं, तो हमारे अंदर स्ट्रेस हार्मोन्स कॉर्टिसोल जनरेट होता है, जिसके कारण चीजें और खराब हो जाती हैं। बहुत ज्यादा कॉर्टिसोल जिन लोगों में होता है, लंबे समय तक होता है, उनको हार्ट डिजीज, डायबिटीज जैसी चीजें भी आ सकती हैं। वो ऑर्गन्स के ऊपर भी कॉर्टिसोल का फर्क पड़ता है। लेकिन एक तरीका है इस कॉर्टिसोल से बच के खुशी की तरफ या एक हैप्पी हार्मोन जनरेट करने का। एक नहीं, कई तरीके हैं। एक तरीका है हंसना, दूसरा तरीका है फिजिकल एक्सरसाइज। तो आप ये सोचें कि जब कभी आप बहुत ज्यादा उदास हों, अगर आप एक 10-15 मिनट की जॉगिंग कराएंगे तो आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल कम और एंडोर्फिन, जिसको हम हैप्पी हार्मोन कहते हैं, वो प्रोड्यूस होता है। सो हर गिवन टाइम पे यू चूज whether you are staying in a positive state or in a negative state.
सो ये जो पॉजिटिव इमोशन की बात है, इसमें ऑप्टिमिज्म और आशावादी रहने की बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत है। तो ध्यान रखें, आप बहुत ज्यादा नेगेटिव न्यूज ना सुने सोशल मीडिया पर, हर वक्त कोरोना कोरोना ना देखें। अपने घर पे जब रह रहे हैं सबके साथ अच्छा टाइम बिताएं, रोज देखें, कम से कम 3 चीजें सोचें जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो, जिनके लिए आप, जो आपके लिए ब्लेसिंग है। अपने घर वालों पर, अपने आसपास जो आपकी फैमिली है, उन सब के साथ चाय कॉफी पीते हुए बात करें, फेस टू फेस उनसे कॉन्वर्सेशन करें। वो उन्हें क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, उनको जाने। हम बहुत सारे लाइफ के ऑटो पायलट में भागते भागते रोज बिजी है, इस चक्कर में उनके साथ बैठना भूल गए। सो एक नए नजरिए के साथ घर के रोज के जो हम काम कर रहे हैं, अपने घर वालों के साथ, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जो जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उसमें सीक हैप्पीनेस, सीक वैलिडेशन, सीक अ लॉट ऑफ पॉजिटिव मोशन। सो ये था हिस्सा आपका पी। अब मैं आ रही हूं ई पे। ई इज एंगेजमेंट। एंगेजमेंट का मतलब होता है किसी चीज में पूरी तरह से उसके बीच में एब्जॉर्ब हो जाना। इंगेजमेंट के लिए ये 4 चीजें हैं जो हमें ये दिखाते हैं कि हम कैसे एंगेज रह सकते हैं। और कोरोना टाइम्स में इंगेजमेंट और इम्पॉर्टेंट बन गया है, क्योंकि आप सबको याद होगा जब हम कोरोना का जब पहला लॉकडाउन था कोरोना के कारण, तो हम सब ने बहुत खाना पीना, नई नई रेसिपीज भी ट्राई करी, फेसबुक वगैरह पे पोस्ट भी करी, सुबह से शाम मस्ती करी, कोई काम किताबों को हाथ नहीं लगाया, वी वर रिलैक्स्ड के देखते हैं। बट रिमेंबर, ऐसा टाइम जहाँ पर हमारे को कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई सर्टेनिटी नहीं है हमारे दिन के शेड्यूल में, ऐसा नहीं है कि 8 बजे कॉलेज जाना है, 4 बजे वापस आना है, वैसा कुछ नहीं है। ऐसे टाइम पे इंगेजमेंट बिकम्स अ चैलेंज। इंगेज्ड रहना बहुत जरूरी है मेंटल हेल्थ के लिए। तो पहली चीज जो आपको उसके लिए करनी है, अपने आप से सिर्फ ये पूछना है कि मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, ऐसा क्या है जो मेरी शक्तियां हैं, थिंग्स दैट आई एम गुड एट, एंड स्टार्ट यूजिंग देम। जैसा आप जिम में मसल्स बनाते हैं, अपनी स्ट्रेंथ की मसल बनाइए, उसको रिपीटेडली प्रैक्टिस करें। कई लोग कहते हैं कि मैं बहुत ऑर्गेनाइज्ड हूँ, कई कहते हैं मेरे को हंसना पसंद है, कई कहते हैं मुझे काइंडनेस पसंद है, कई लोग कहते हैं कि नॉलेज पसंद है, कई कहते हैं जस्टिस पसंद है। जो भी आपकी स्ट्रेंथ है, जो भी स्ट्रेंथ है, उसको रिपीटेडली प्रैक्टिस करें। और एक चीज, एक्चुअल स्ट्रेंथ तब होती है व्हेन इट गिव्स यू हैप्पीनेस। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप जब अपनी स्ट्रेंथ्स को प्रैक्टिस करेंगे, यू विल हैव अ सेंस ऑफ एंगेजमेंट। आप उन चीजों में थकेंगे नहीं। अगर आपको पढ़ाना पसंद है तो आप क्लास के अंदर जाते हो, बच्चे थक जाते हैं कि भाई 40 मिनट हो गए, चुप हो जाओ, पर टीचर्स जो है दे आर हैप्पी टू गो ऑन फॉर 1 आवर ऑल्सो। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको प्रैक्टिस करें, किसी भी तरह उसका इस्तेमाल करें ताकि वो आपको हैप्पीनेस दे। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है माइंडफुलनेस, क्योंकि माइंडफुलनेस के ऊपर आगे भी बात होगी। प्लीज रिमेंबर, हम माइंडफुल तब होते हैं जब हम इस गिवन मोमेंट में हो, हेयर एंड नाउ। नाउ इज द ओनली मोमेंट दैट वी हैव। ना तो हम पास्ट की चिंता, ना तो हम फ्यूचर के बारे में आगे, पास्ट के कारण अक्सर हमें सैडनेस, गिल्ट हो सकती है, और फ्यूचर को लेके हमें चिंता हो सकती है, वरी हो सकती है। सो रिमेंबर, माइंडफुलनेस इज समथिंग जो आपको प्रेजेंट के साथ, पीस के साथ जीना सिखाती है। और माइंडफुलनेस का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप किस चीज पर ध्यान लगा रहे हो, आपकी क्वालिटी ऑफ अटेंशन क्या है। माइंडफुलनेस अगर आप सीधा बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझें तो एक खास तरीके से चीजों के ऊपर अटेंशन देना, जानकर, पर्पस के साथ, प्रेजेंट मोमेंट में, आगे पीछे की बात ना सोचना, एंड नॉन जजमेंटली। ये नहीं कि हो मुझे तो एंग्जाइटी हो रही है, मुझे तो घबराहट हो रही है, मुझे तो आज बहुत उदासी है, आज मुझे बहुत गुस्सा है। जब हम ये सारी इमोशंस को जज करते हैं, जब उनको लेबल लगाते हैं, तब आप माइंडफुलनेस से हटकर उनके उस इमोशन के अंदर घुस जाते हो। सो हेयर एंड नाउ को कैप्चर करना बहुत जरूरी है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन या माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस जितनी भी हैं, उसमें भी जैसा मैंने पहले कहा, ब्रीदिंग का बहुत रोल है। आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सिंपल, जब जब आप ब्रीद कर रहे होते हैं, ये एक्रोनिम याद रखें। बी इज बॉडी अवेयरनेस, कि राइट नाउ आपकी बॉडी को कैसा फील हो रहा है, क्या टायर्ड है, क्या स्ट्रेस है, क्या रिलैक्स्ड है। रिफ्लेक्शन, आपके दिमाग में क्या थॉट्स चल रहे हैं। ई स्टैंड्स फॉर इमोशंस, क्या इमोशंस चल रही हैं। सिट विद ऑल ऑफ दिस। जब आप ब्रीद करने बैठे, माइंडफुल ब्रीदिंग करने बैठे, तो ये सब अपनी बॉडी, अपने थॉट्स और इमोशंस
तीनों के साथ उनको रिजेक्ट ना करें, जो हो रहा है होने दें, जस्ट पे अटेंशन। ऐसे जैसे कि बस आप बाहर बैठे कोई मूवी देख रहे हैं, वैसे अपनी बॉडी, अपनी इमोशंस और थॉट्स को अटेंड करें, जस्ट ऑब्जर्व करें और एक्सेप्ट करें, जस्ट बी विद देम। उसको कोशिश ना करें कि अरे बहुत ज्यादा सैडनेस हो गई, अभी से कम कर लूं, ज्यादा कर लूं, कुछ और कर लूं। नो, जब आप माइंडफुल ब्रीदिंग करने बैठें, टेक इट एज इट इज, एक्सेप्ट करें। और जब आप ये एक्सेप्टेंस लाएंगे, यू विल सी दैट यू विल स्टार्ट फीलिंग रिलैक्स्ड इन योर माइंड, और उस रिलैक्सेशन के साथ यू फील बैलेंस्ड। आपको ऐसा महसूस होता है कि आपकी इमोशन रेगुलेट हुई है। वो फियर जो पहले 100 पे था वो 10 पे आ जाएगा, वो फियर जो पहले मीटर तोड़ रहा था वो धीरे धीरे नीचे आने लग जाएगा। सो रिमेंबर टू ब्रीद, remember to keep this acronym with yourself. Another simpler way, stop. जो भी आप कर रहे हो, just stop. S stands for stop, T stands for mindfully एक सांस लें, ब्रीथ करना अपने थॉट्स, इमोशंस और बॉडी के साथ। उसको सिर्फ ऑब्जर्व करें, क्या महसूस हो रहा है ये देखें, उसको चेंज करने के, बदलाव करने की कोशिश ना करें। ये मत सोचें कि अरे ये हो रहा है, इसको मैं बदल दूं, ऐसा कर दूं। नो, जब आप ये ऑब्जर्व करते हैं, थोड़ी देर उसके साथ रहते हैं, देन प्रोसीड विद अवेयरनेस। सो माइंडफुलनेस एक अगेन एक मैजिकल क्लिप आउट ऑफ नेगेटिव स्टेट है। आप जो है आगे पीछे अपनी लाइफ में घूम रहे हैं, उससे निकलकर प्रेजेंट मोमेंट में आना बहुत जरूरी है। और रिसर्च ने दिखाया है कि माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने से ना सिर्फ आपकी बॉडी रेगुलेशन का मतलब आपकी बॉडी का टेम्परेचर, हार्ट बीट, आपका इंसुलिन सिक्रीशन, जितने भी हमारे रेगुलर न्यूरो बायोकेमिकल प्रोसेसेस हैं वो सब रेगुलेटेड रहते हैं, आपकी इमोशंस रेगुलेटेड रहती हैं, आपको अपने बारे में ज्यादा अवेयरनेस रहती है, और आपका जो डर है, जो एक बहुत मेजर कारण रहता है चीजों को परेशानी देने का, वो डर आपका कम रहता है, कंट्रोल में रहता है। और इस पूरे माइंडफुल और एंगेजमेंट के प्रोसेस में रिमेंबर टू सेवर। आई थिंक हम सबको कुछ फ्लेवर्स बचपन के याद होते हैं, मम्मी के या नानी के या दादी के हाथ का एक खास फ्लेवर होता था, चाहे वो रोटी का हो, चाहे वो अचार का हो, चाहे वो सब्जी का हो। उसके बारे में सोच के आज भी चेहरे पे स्माइल आ जाती है। ऐसे ही हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारे फ्लेवर्स, बहुत सारी मेमोरीज हैं जिनके लिए हम ग्रेटफुल हो सकते हैं, जिनको सोच के हमें प्राइड महसूस हो सकती है, हमें ऐसे लग सकता है वाह मैं कितनी लकी थी कि मेरे पास ये चीज़ थी। सो उन सब चीज़ों को याद करके सेवर करें, उनको अपने साथ रखें उन मोमेंट्स के लिए जब आपको लगे कि आप शायद परेशान हैं या अनवेल हैं। और एंगेजमेंट का एक बहुत बहुत एक फाइनल आउटकम होता है जिसको हम साइकोलॉजी में कहते हैं फ्लो। फ्लो का मतलब होता है कि आपको याद नहीं रहता कितना समय बीत गया, कितना टाइम निकल गया, क्या किस जगह पर हैं, आपने खाना नहीं खाया। जैसे बहुत सारे म्यूजिशियंस हैं, एथलीट्स हैं, एक्टर्स हैं, वो ऐसा कहते हैं कि हम कभी कभी जो कोई एक पर्टिकुलर मैच खेल रहे थे तो मुझे पता ही नहीं चला इतनी देर हो गई। कई दफा आप मेडिटेट करते हो तो आप कहते हो अरे पता ही नहीं चला, मैंने 1 घंटा मेडिटेट किया, मुझे तो लगा सिर्फ 10 मिनट बैठी थी मैं। सो ऐसे हमारी लाइफ में बहुत से एक्सपीरियंसेस होते हैं जिसमें हम कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, एंड द बाउंड्रीज ऑफ टाइम, ऑफ बॉडी, ऑफ डिस्कम्फर्ट, दे स्टॉप एग्जिस्टिंग फॉर अस। बहुत दफा टीचर्स में भी होता है ऐसा। आप कोई कोई क्लास जब पढ़ाने जाते हो तो आपको ऐसा लगता है वाह यार आज तो मतलब छा गई, बच्चों को क्या समझ आया पता नहीं, पर आपको बहुत अच्छा महसूस होता है किसी किसी क्लास के बाद कि आपने ऐसा बढ़िया पढ़ाया। और आपको भूल जाता है कि आपने कितनी देर तक पढ़ाया, क्लास की बेल बज गई, शायद आपको ध्यान ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप फ्लो में चले गए, परफेक्ट एंगेजमेंट विद व्हाट यू आर डूइंग। सो जब आप वो चीजें इंजॉय करने लग जाते हैं जो आप रोज रोज करते हैं, तो आप फ्लो, एंगेज्ड स्टेट में जा सकते हो। और जब कभी हम फ्लो की स्टेट में होते हैं या परमा के ई एंगेजमेंट में होते हैं, हम हमेशा हैप्पी होते हैं। कोई भी इंसान एंगेज्ड प्रोसेस से नहीं निकला जो कहेगा दैट आई एम अनहैप्पी, आई एम सैड, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। हम जब फ्लो इज समथिंग लाइक द पीक एक्सपीरियंस दैट वी कैन हैव। एंड ये जो एंगेजमेंट की 3 चीजें मैंने बोली हैं, ये इकट्ठी काम करती हैं। आप फ्लो में रहेंगे, आप प्रेजेंट में रहेंगे माइंडफुली, और आप सेवर करेंगे। ऑल दीज विल इवेंचुअली अगेन लीड अस टू पी, द पॉजिटिव इमोशन। सो पी और ई
साथ साथ बहुत आसानी से चल सकते हैं। एंगेज्ड रहने के भी बहुत से तरीके हैं। अगर आप कुछ लिख रहे हैं, कोई चैप्टर लिख रहे हैं, कोई किताब लिख रहे हैं, कोई रिसर्च प्रपोजल लिख रहे हैं, कोई कविता लिख रहे हैं, कोई कहानी लिख रहे हैं, सिट विद इट। अभी जो आजकल का टाइम है, आपके पास इतना टाइम है कि आप उसको पूरा टाइम, पूरी एनर्जी दे सकते हैं। लोगों से बात करें, कनेक्ट करें, उनको माइंडफुली उनकी बातें सुने, एक्सरसाइज करें, गाना गाएं, कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं वो करें। ये सब चीज़ें आपको इंगेजमेंट का एक्सपीरियंस देती हैं, फ्लो का एक्सपीरियंस देती हैं। सो डू नॉट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ दी स्मॉल लिटिल थिंग्स दैट यू डू ऑन एन एवरीडे बेसिस। कुकिंग में बहुत लोगों को फ्लो महसूस होता है कि आप जब कुछ खाना बना रहे होते हो, इससे पहले कि दूसरे वैलिडेट करेंगे आके कि अच्छा है बुरा है, आपको लगता है वाह 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 क्या टेस्ट है। वो एक फ्लो है। यू वर सो एब्जॉर्ब्ड इन कुकिंग that you can experience a state of flow just anywhere. आप बच्चों के साथ खेलने में महसूस कर सकते हैं। सो ऑन एन एवरीडे बेसिस अपने लिए ऐसी एक्टिविटीज चुने जिनमें आप engage हो सकते हैं। The second important way to restore your well-being. So P was positive emotion, E was engagement, and now I'm coming to R, relationships, जिसकी मैंने पहले भी बात की है। Relationships जैसा हमने शुरू में बोला, जरूरी है ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट करना जो आपकी बात को समझते हैं। Our family, our friends, have deep conversations with the right people, and you will see कि आपकी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम सिर्फ बांटने से ही कम हो जाती है। And we have all known this कि बहुत लोग कहते हैं कि मैंने बात की तो मेरा दुख आधा हो गया। इसीलिए क्योंकि सही बात करना या लोगों के साथ कनेक्टेड रहना जो है, ये हमारे को परमानेंटली हमारी वेलबींग को इम्प्रूव कर सकता है। तो लोगों से बात करते रहें, लोगों से के मन की बात सुने और खुद भी उनको अपने मन की बात बताएं। लोगों के प्रति एम्पैथी डेवलप करना इज अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इन रिलेशनशिप्स। अच्छे रिलेशनशिप्स में एक इम्पॉर्टेंट फीचर होती है जिसको हम एम्पैथी कहते हैं। हिंदी में एम्पैथी को कहा जाता है तदानुभूति। सहानुभूति होती है दया, सिंपैथी, कि मुझे दया आ रही है कि बेचारे आप। तदानुभूति होती है कि जैसा आपको महसूस हो रहा है वैसा मुझे भी महसूस हो रहा है, उसको हम एम्पैथी कहते हैं। हम रिलेशनशिप्स में या एक्चुअली लाइफ में जहाँ किसी भी स्टेट में, किसी भी प्रोफेशन में हो, हम इस एम्पैथी से बहुत दूर निकल चुके हैं, जिसके कारण हमारे रिलेशनशिप्स और हमारी हैप्पीनेस दोनों सफर करते हैं। आइडियल एग्जाम्पल एम्पैथी का होता है अगर आप कभी किसी बच्चों के क्लिनिक में गए हों, या आप कभी बस में ट्रैवल किया हो जहाँ पर 2-3 बच्चे हों, उसी में सवार हों। एक बच्चा रोना शुरू करता है तो सारे के सारे रोना शुरू कर देते, सबका बैंड बाजा शुरू हो जाता है। शायद उनमें परफेक्ट एम्पैथी होती है। बिना एक बच्चा शायद दर्द के कारण रो रहा, बाकियों ने उसके रोने से उसका दर्द समझकर रोना शुरू कर दिया। लेकिन हम ह्यूमन बीइंग्स जब बड़े होते हैं, कंपटीशन, राइवलरी, तो हमें अच्छा लगता है कि कोई गिर गया तो ऐसे लगता है बड़ा स्मार्ट बन रहा था, अच्छा हुआ इसके साथ ऐसा हुआ, तो हमारी एम्पैथी कम हो गई है। और जब हम एम्पैथी नहीं रखते तो हम अपनी अनहैप्पीनेस का रिस्क बढ़ाते हैं। सो स्टे कनेक्टेड टू पीपल, प्रैक्टिस एम्पैथी। एम्पैथी जरूरी है क्योंकि लोगों को जब हम जज करते हैं तो हम लोगों के साथ साथ अपना भी नुकसान करते हैं। जज करने का मतलब है कि हम पहले से प्रिज्यूम करने लग जाते हैं, ऐसा हुआ होगा, अच्छा आज उसने ऐसे बोला, उसके साथ ये। जैसा आई थिंक एक बड़ी कॉमन चीज जो बच्चे करते हैं, कभी कोई टीचर अगर जाके बच्चों को गुस्सा करते हैं हम क्लास में, तो कभी कभी स्टूडेंट्स कहते हैं आज जरूर मैडम लड़के आई होगी, खाना नहीं मिला होगा इसको। सो व्हाट इज दिस सिंपली जजमेंट। ऐसे हम भी एज टीचर्स बहुत जज करते हैं बच्चों को कि कोई बच्चा क्लास में बात कर रहा होगा तो हम उनको गुस्से से बहुत ज्यादा इंसल्ट के तरीके से उनसे बात करते हैं। इट इज इम्पॉर्टेंट कि एम्पैथी हमें एक इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म पे लेकर जाती है कि आप एग्जैक्टली वही चीज फील कर सके जो दूसरे को महसूस हो रही है। टू दे से यू नो एग्जैक्टली वेयर द शू बाइट्स, टू बी इन अदर्स शूज, इसको एम्पैथी का एक्सप्रेशन कहा जाता है। तो हमें रिलेशनशिप्स में भी एम्पैथी को प्रैक्टिस करना चाहिए। लोगों को लेबल करना, जज करना, उनके प्रति धारणाएं बनाने से बचना चाहिए, क्योंकि जब हम लोगों के बारे में धारणाएं बनाते हैं, उन्हें जज करते हैं, इट इज द मोस्ट डिवाइसिव फोर्स। आप उनको और अपने आप को अलग थलग कर देते हैं। तो ये सोचकर, ये धारणा, ये मान लेने की बजाय कि ऐसा ही हुआ होगा, इट्स बेटर कि आप उन्हें जाके पूछें, आर यू ओके, हैज दिस हैपेंड, मुझे ऐसा लग रहा है आप परेशान हैं, इसकी बजाय कि ये सोचो कि अरे आज तो इसे बात ही नहीं करनी, फट पड़ेगी मेरे ऊपर। इट्स इम्पॉर्टेंट नॉट टू एज्यूम, नॉट टू जज,
बी एम्पैथेटिक। सो रिलेशनशिप्स में एम्पैथी की बहुत इंपॉर्टेंस है, और रिलेशनशिप्स को स्ट्रांग रखने के लिए, और ये इस सब को आप प्लीज इस लाइट में याद रखें, जितने पॉइंट्स मैं बोल रही हूँ इसमें से आप कोई भी एक आध प्रैक्टिस हर रोज अगर करेंगे, पी की एक, ई की एक, आर की एक, you will come to a point where you will automatically see a difference in your state of mind and state of days. Now forgiveness is again something that is important to restore relationships. बहुत से लोग ये मानते हैं कि माफ करने वाले कमजोर होते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, रिसर्च ने दिखाया है कि जो लोग माफ करते हैं दे आर स्ट्रॉन्गर। और क्यों माफ करना जरूरी है, ये कोट बहुत खूबसूरत है कि जब हमें कोई तंग करता है, नाराज करता है, किसी ने आपके साथ बुरा किया है, तो आप सोचें कि जब आप बदले की भावना मन में रखते हैं, तो इट्स लाइक यू नो कि आपने एक जलते हुए कोयले का पीस अपने हाथ में पकड़ लिया, और आप ये सोचकर घात लगाकर बैठे हो कि ये बंदा आएगा और मैं इसको जला दूंगी, इसने मेरे साथ बुरा किया, एंड यू आर रेडी टू थ्रो दिस बर्निंग कोल एट दिस पर्सन। अब आपका निशाना कितना अच्छा है, चेतन की तरह तो नहीं होगा बिकॉज शी इज एन इंटरनेशनल शूटर, तो आपका निशाना कैसा है वो एक अलग चीज है, लेकिन आप जब ये कोयला फेंकेंगे वो बंदा जलेगा कि नहीं, पर आपका हाथ इस प्रोसेस में जरूर चलेगा। सो जब हम माफ नहीं करते, जब हम अपने मन में बहुत सारी घृणा, बहुत सारा गुस्सा अंदर रखते हैं, तो दूसरे इंसान पे उसको असर कम पड़ता है, आपके शरीर पे, आपकी हेल्थ पे, आपकी मेंटल पीस पे कहीं ज्यादा पड़ता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू फॉरगिव पीपल। देयर इज रिसर्च दैट हैज शोन कि जो लोग माफ नहीं करते और बहुत बदले की भावना के साथ जीते हैं, गुस्से में जीते हैं, क्रिटिसिज्म में जीते हैं, उनमें अल्सर्स की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। हेल्थ साइकोलॉजी एक एरिया जो हर बिहेवियर पैटर्न को किसी ना किसी प्रॉब्लम के साथ वी हैव स्टडीड कि ऐसा करने से क्या क्या हो सकता है। तो जो अल्सर्स की या पेट की बीमारी या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स होती हैं, उनका एक बहुत बड़ा कारण होता है बदले की भावना मन में रखना और माफ ना कर पाना। सो इट्स important फॉर योर रिलेशनशिप्स एंड फॉर योर ओन well-being टू learn to forgive people. Another important way to keep your relationships going fine is to show compassion. Be there for people. आप, हम कहते हैं प्यार लोगों को दिखाना, कंपैशनेट रहना, उनके प्रति उनकी हेल्प करना हर चीज में, उनको किस चीज की जरूरत है इसकी तरफ सेंसिटिव रहना, दैट इज कंपैशन। और कंपैशन यहाँ पर ऑफ कोर्स मैंने एनिमल्स की इमेजेस यूज की हैं, बट ट्रस्ट मी, टू बी कंपैशनेट टुवर्ड्स आवर people, our family is very important. And compassion दूसरों के प्रति नहीं, अपने प्रति रखना भी बहुत जरूरी है। सेल्फ कंपैशन, क्योंकि हम खाली बर्तन से किसी को कुछ नहीं दे सकते। अगर आपके अंदर अपने प्रति कंपैशन होगा तभी आप दूसरों को कंपैशन उनकी तरफ डायरेक्ट कर पाएंगे। सो ऑलवेज रिमेंबर, सेल्फ केयर इज समथिंग दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहले खुद से शुरुआत करें और फिर आगे आप देखेंगे एक चेन रिएक्शन बन जाएगी। आप अगर कंपैशनेट होंगे तो आपके आगे सर्कल में आने वाले बहुत सारे लोग भी आपके कंपैशन का फायदा आपके खुद की तरफ और उनकी तरफ ले पाएंगे। और जब मैं सेल्फ कंपैशन की बात कर रही हूँ, छोटी छोटी चीजें, जब आप स्ट्रेस में होते हो तो खुद के साथ शुरू करें और फिर बाकियों को भी बता सकते हैं। हॉल्ट, हॉल्ट का मतलब होता है रुकिए। हॉल्ट एंड आस्क योरसेल्फ, एच फॉर हंग्री, भूख लगी है। बहुत दफा हम लोग क्या करते हैं कि खाना जब जब स्ट्रेस का टाइम होता है, जब कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, तो हम कई दफा अपना पहली चीज जो हम छोड़ते हैं वो कि अच्छा आज ब्रेकफास्ट छोड़ो, भागो भागो, देर हो रही है। इफ यू आर हंग्री, प्लीज टेक अ ब्रेक एंड ईट। क्योंकि फिजियोलॉजिकली हमने देखा है जब हमें भूख लगती है ग्लूकोज लेवल्स नीचे होते हैं, इरिटेशन बढ़ती है, गुस्सा आता है, गलतियां होती हैं। तो एच फॉर हंग्री। अगर आपको लगता है कि आप गुस्सा है, आपको एंग्री है, तो थोड़ी देर के लिए बाहर निकल जाएं, एक छोटी सी वॉक ले आएं। अगर आपको लगता है बेचारे आप अकेले हैं, यू आर लोनली, कोई आपकी बात नहीं समझता, प्लीज लुक अराउंड, देयर विल बी समबडी हु यू कैन ट्रस्ट एंड रीच आउट। तो अपने परिवार, अपने घर वालों के पास जाएं, अपने फ्रेंड्स से बात करें। डोंट डोंट विक्टिमाइज योरसेल्फ बाय स्टेइंग लोनली। और अगर आपको लग रहा है आप थक गए हो, प्लीज रेस्ट। अपनी बॉडी की तरफ एग्रेसिव मत हो, मत अपने आप को सुपर वुमन या सुपरमैन बनाए, एंड वी बिकम द विक्टिमाइज्ड सुपर पीपल हु हैव नो पावर्स। सुपर पावर्स तो दूर की बात है, अपनी नॉर्मल पावर भी नहीं रहती क्योंकि हमने अपने रेस्ट को कॉम्प्रोमाइज किया होता है। सो बी कंपैशनेट टू योर बॉडी, to what your body and your mind is asking for. So halt is a quick way to snap out of this thing. So remember to halt when you feel that you are going out.
अपने अंदर सारी इमोशंस को, बाहर वालों को भी ये सिखाएं और खुद के लिए भी, दैट डू नॉट कीप बॉटलिंग अप दीज नेगेटिव इमोशंस। वो चीज़ें जिनसे स्ट्रेस होता है उनके बारे में बात करें। अगर आपको लगता है किसी की मदद चाहिए, प्लीज सीक हेल्प। इट इज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ एंड नॉट weakness, and you're not alone. All of us are going through these things during these times and also later. This is an everyday thing. Please, you are unique and know that you need to be compassionate towards yourself. So फाइनल चीज जो रिलेशनशिप्स को रिस्टोर रखती है, अच्छा रखती है, दैट इज काइंडनेस। बी काइंड, लोगों के प्रति अच्छा व्यवहार रखें, उनके प्रति काइंड रहें। और जब आप काइंडनेस का एक्ट करते हैं, इट्स लाइक अ रिपल इफेक्ट। हम सब ने न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में पढ़ा था अपनी 8th-9th स्टैंडर्ड में, कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से, इट्स लाइक अ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। सो जब आप काइंडनेस करते हैं, आपने सपोज मेरे साथ अगर कोई एक अच्छा काम किया, तो अब मैं इतनी खुश रहूंगी आपकी काइंडनेस से, मैं आपको थैंक यू बोलूंगी कि आगे अगर किसी और को जरूरत होगी मैं उनकी मदद करूंगी, और आगे वो और किसी की और किसी की। तो ऐसे एक चेन रिएक्शन, एक स्ट्रॉन्ग चेन रिएक्शन शुरू होता है काइंडनेस के द्वारा, जहां ना सिर्फ आपका लाइफ स्पेस चेंज होता है पॉजिटिविटी की तरफ, और लोगों का भी होता है। सो एवरी एक्ट ऑफ काइंडनेस एंड लव मैटर्स, डू नॉट अंडर एस्टिमेट। बहुत लोग कहते हैं अरे मेरे काइंड होने से क्या होगा, मेरे आसपास सब अनकाइंड लोग हैं। डोंट वरी, ट्राई इट एंड सी द मैजिक। एक चीज, एक पॉइंट से ही ये रिएक्शन शुरू होता है, मे बी दैट पॉइंट इज यू। व्हाई अंडर एस्टिमेट द इंपॉर्टेंस? सो गो अहेड, बी काइंड, दिस विल हेल्प यू वर्क ऑन योर रिलेशनशिप्स। सो कोरोना टाइम्स में प्लीज अपने नेबर्स का ध्यान रखें। हो सकता है कोई बुजुर्ग अकेले रह रहे हो, उनसे फोन पे बात करें। अगर आप सेफ डिस्टेंस रखना ऑफ कोर्स इन टाइम्स में जरूरी है। अपने कोलीग्स के साथ बात करें, वो कैसे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, अपने पार्टनर, अपने बच्चों से बात करें। लोगों की इमोशंस और फीलिंग्स को समझने के लिए उनकी बात सुने, जवाब देने के लिए या समझाने के लिए नहीं। हम बहुत दफा जब सुनते हैं तो हमें लग रहा है अच्छा अभी ये बोलने वाली है, अभी मैं ये जवाब देती हूँ। नो, प्लीज जस्ट लिसन। हमें नेचर ने 2 कान और 1 मुंह दिया है, हमें आधा बोलना है और डबल सुनना है, हम उल्टा करते हैं। सो listening has a very important role in communication, in mindfulness, in relationships, in staying happy. So continue to understand that relationships are our biggest source, and they are important, vital for health and happiness. Relationships हमारे हमारे हर रिएक्शन को फर्क डाल सकते हैं। आप कैसे पेन को, कैसे डर को, कैसे दर्द को रिएक्ट करते हैं, आपके रिलेशनशिप्स उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और हम सब बहुत दफा जो अपने साथ बात करते हैं, दैट इज ऑल्सो डिटर्मिन बाय आवर रिलेशनशिप्स। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। आई विल जस्ट काइंड ऑफ स्टे ऑन दिस स्लाइड फॉर अ व्हाइल अगेन, बिकॉज जब आपके रिलेशनशिप्स, जिस तरह हमारे पेरेंट्स ने हमसे बात की, और हम आगे अपने बच्चों से, अपने स्टूडेंट से बात करते हैं, वो बहुत दफा डिटर्मिन करता है कि वो बच्चे अपने आप को कैसे देखते हैं। A lot of things that our relationships tell us, they become our inner voice. मैं अकेले में वही बातें सुनती हूँ अपने बारे में। एक बहुत छोटी सी कहानी है, जो हाथी का बच्चा होता है, आपने अगर कभी देखा हो, तो एक इंसान एक बार जा रहा होता है और वो देखता है कि एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सा एलिफेंट, बड़ा सारा फुल ग्रोन एडल्ट एलिफेंट एक छोटे से खूंटे के साथ बंधा होता है, और उसके साथ उसका महावत कुछ काम कर रहा होता है। तो बंदा उसके पास जाता है, महावत को कहता है कि भैया ये इतना बड़ा विध्वंसकारी हाथी जो जंगल के जंगल उजाड़ देता है, ये छोटे से खूंटे के साथ बंधा हुआ है, ये तो इसे तोड़ के भाग सकता है। तो वो जो महावत होता है वो उसको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलता है, जो मैं आपको यहाँ पर कहना चाहती हूँ, कि वो कहता है कि ये जब हाथी छोटा सा बच्चा था, जब उसके लिए खूंटा काफी स्ट्रांग था और ये छोटी सी लोहे की जंजीर भी काफी थी, मैंने इसको तब से इसी के साथ बांधा है। तब ये छोटा था, नॉटी था, चंचल था, ये खूब कोशिश करता था, उसके साथ भिड़ता रहता था, पर ये स्ट्रांग था, खूंटा तब उसके लिए, और ये उसको नहीं तोड़ पाता। कहता कुछ देर उसने कोशिश की, फिर उसने कोशिश करनी बंद कर दी। अब ये बड़ा हो गया पर अब ये कोशिश ही नहीं करता, क्योंकि इसकी बचपन की आवाज इसको अभी तक याद आती है कि भाई तुझसे ना हो पाएगा, तेरे से नहीं टूटेगा। तो अब ये कोशिश ही नहीं कर रहा इससे निकलने की। हम में से भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऐसे अलग अलग इनर वॉइसेस और लो सेल्फ एस्टीम के खूंटों के साथ बंधे हुए हैं। हम उनसे निकलने की कोशिश नहीं करते, जिसके कारण हमारे रिलेशनशिप्स के ऊपर नेगेटिव असर पड़ता है। सो प्लीज फोकस ऑन हाउ यू टॉक टू योरसेल्फ। क्या आप अपने आप को हमेशा नेगेटिव बात बोल रहे हैं? चेंज इट, क्योंकि आप जो अपने आप को कहते हैं
आपका नर्वस सिस्टम, आपका ब्रेन और आपके एक्शंस, ये सब उसी लाइन में चलेंगे। अगर आप खुद को कहोगे यू आर अ लूजर, तो आपका ब्रेन भी यही कहेगा यू आर अ लूजर। आप एक्शंस भी ऐसे करोगे जो प्रूव करेंगे यू आर अ लूजर। अगर आप कहोगे आई कैन ट्राई, यू विल सी कि आपका ये पूरा सर्किट बदलेगा। अगर आप कहोगे आई एम अ विनर, ये पूरा सर्किट बदलेगा। सो रिलेशनशिप्स में भी इनर टॉक की महत्वता को समझें और लोगों के साथ इसी हिसाब से बात करें कि आप उनको कोई परमानेंट स्कार ना दें। एंड प्लीज रिमेंबर, रिलेशनशिप्स जो है वो हमारे अंदर हैप्पी हार्मोन्स एंडोर्फिन और ऑक्सीटोसिन, ये दो जो सोशल हार्मोन्स हैं, ये हमारी हार्ट की और हमारे बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स को सेफ इम्यून रखते हैं, हमें इन्फेक्शन का खतरा बचाते हैं। सो दीज आर अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ कमिंग टू एम ऑफ परमा, मीनिंग। इसमें पहला है एल्ट्रुइज्म। एल्ट्रुइज्म का मतलब होता है बिना कुछ चाहे, बिना किसी एजेंडे के लोगों का भला करना, लोगों के लिए अच्छा करना। सो रिमेंबर टू डू एक्ट्स ऑफ काइंडनेस विदाउट सीकिंग एनीथिंग इन रिटर्न। लोगों को मदद करें बिना कुछ वापस चाहे, वो भी अगेन एक एक चेन रिएक्शन शुरू करता है। और दूसरे इंसान को कर्जा या एक बर्डन की फीलिंग नहीं होनी चाहिए। हम लोग बहुत दफा लोगों का अच्छा तो कर देते हैं पर साथ ही जता देते हैं, मैं तो बहुत सुपीरियर हूँ इसीलिए मैं तो, चल तेरे से नहीं होगा कोई बात नहीं मैं कर देती हूँ। सो डोंट डू दैट प्लीज। लोगों को बर्डन के ओवर बर्डन करके आप कोशिश ना करें कि आप उनको जताएं। एल्ट्रुइज्म का मतलब होता है बिना किसी एजेंडा के लोगों की मदद करना। क्यों? इससे हमारे जीवन को सार्थकता मिलती है। अगर आपसे कभी कहा जाए कि अच्छा थिंक ऑफ अ टाइम जब आपने किसी की मदद की थी, आपको जैसे याद आता है कि हाँ सड़क पे कोई एक्सीडेंट हुआ था और मैंने विक्टिम को उठा के अस्पताल पहुंचाया था, आपको वापस कुछ नहीं मिला बट दिस इज लाइक अ गुड पैट ऑन योर बैक, आपको अपने बारे में अच्छा महसूस होता है। इट एड्स मीनिंग टू योर लाइफ। सो कोशिश करें ये जानने की कि क्या चीजें हैं जो आपके जीवन में सार्थकता और हैप्पीनेस लाती हैं। व्हाट इज योर व्हाई? आप क्या, क्यों जी रहे हैं, आप क्या चाहते हैं अपने जीवन से, आपके जीवन का पर्पस क्या है। दिस ए पर्पस ऑफ लाइफ इज टू लिव अ लाइफ ऑफ पर्पस। एंड क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे अभी टीचर्स ज्यादा हैं, आई विल टेक अ सेकंड कि ये जो इस राइट साइड पे ये जो एक छोटा सा स्टार है, हम लोगों को, हम में से वो टीचर्स, वो लोग जो खुशी खुशी इस प्रोफेशन को पिक करे हैं, हमें लगता है दैट टू बी अ टीचर इज अ ग्रेट जॉब। Remember, we are paid for this job. This is something that we are good at. We love teaching, and we also, teaching is one thing, teachers are something that the world needs. So we are in a win-win position. ये जो center का जो space है, this is my existence, my meaning. So important है कि आप लाइफ में जो भी चीजें कर रहे हैं उसमें सार्थकता निकालें, उसको उस ढंग से करें कि आप engaged भी हो और वो आपके जीवन का पर्पस भी डिफाइन करे। एंड इस सारी चीज में जब आज हमने शुरू किया तो मनु मैम ने भी कहा दैट prayer is our way of thanking and asserting it's very strong. Spirituality and religion are two things that are extremely important in giving meaning to our lives. So जब आप meaning की बात करें, please remember that कोरोना टाइम्स में जरूरी है दैट वी हैव टू रिकंसिडर आवर पर्पस। अब अगर हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, हाउ वी आर गोइंग टू इंश्योर दैट दे विल बी देयर विद अस, वी आर गोइंग टू मेक अ डिफरेंस टू देम। सो प्लीज रिकॉन्फिगर दिस होल पर्पस ऑफ योर लाइफ। एक्सप्लोर करें क्या पर्पस है। हमारे पास चीजें बहुत हो सकती हैं, हमें उसमें प्लेजर मिलेगा, पर्पस नहीं मिलेगा। पर्पस के लिए वी नीड टू हैव अ पर्सनल इम्प्रूवमेंट प्लान। वो चीजें जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं, वो चीजें जो मेरे गोल्स की तरफ मुझे लेके चलेंगी। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि मीनिंग को कम ना समझे। मीनिंगफुल एंगेजमेंट इज समथिंग जो ड्यूरिंग कोरोना एंड पोस्ट कोरोना हमें बहुत मदद करने वाली है। लास्ट इन दिस इज अकम्पलिशमेंट और अचीवमेंट। सो अकम्पलिशमेंट का मतलब होता है कुछ चीजों को आप अचीव कर पा रहे हैं। पहली चीज है कि आपके कुछ आपकी कोई बकेट लिस्ट होगी, आपके पास हो कि मैं ये चीजें जीवन से चाहती हूँ। प्लीज राइट देम डाउन, उनको टिक करें कि क्या आपको मिल गया। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप बहुत सारी चीजें ऑलरेडी पा चुके हैं। बहुत सी चीजें हैं जिनके लिए यू कैन प्रिपेयर अ लिटिल प्लान कि मैं अगले साल में या आगे क्या करूंगी। सो यू विल एक्चुअली नो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू हैव एंड व्हाट आर द थिंग्स यू आर वर्किंग फॉर। दिस डायरेक्ट्स योर जर्नी of accomplishment. Make second one is self concordant goals. हम सबके कुछ गोल्स होते हैं जो इस बकेट लिस्ट से भी निकल के आ सकते हैं, बट इट्स इंपॉर्टेंट कि ये वो गोल्स हो जो आपके हैं, किसी और के गोल्स नहीं कि आपके पेरेंट्स ये चाहते थे तो उनके कारण मैं ये चीज कर रही हूँ।
look for goals which you want, which will give you meaning, your life meaning. तो आप जो भी कर रहे हैं उसके साथ अगर आप सिंगिंग सीखना चाहते हो या कोई लैंग्वेज सीखना चाहते हो, कुछ भी और करना चाहते हो, start including them in your goal plan. Work on them. Self concordance is extremely important to give you meaning and accomplishment both. Cultivate a growth mindset. Growth mindset का मतलब है हमें ये जानना जरूरी है कि हम किसी भी वक्त, जब जागो तभी सवेरा, कभी भी हम ग्रो कर सकते. वी कैन वर्क ऑन आवर सेल्स. वर्किंग हार्ड टू गेट व्हाट वी वांट इज द ओनली वे आउट. सो नेवर अंडर एस्टिमेट कि अरे अब तो इतनी उम्र हो गई, अब काय के गोल, अब काय की अकम्पलिशमेंट, अब तो ठीक है, चलते हैं, घर बैठते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा. डोंट. एट एवरी स्टेज यू cultivate a growth mindset, which is important, and keep working towards your goals. And these goals should be gritty. Grit शब्द का मतलब होता है आप ग्रो कर रहे हैं, आप में रेजिलियंस है, एंड ऑल्सो आप लंबे समय तक पैशनेटली एक चीज के ऊपर काम करने के लिए तैयार हैं. सो अगर आपका कोई सेल्फ कंकॉर्डेंट गोल, कोई ऐसी अकम्पलिशमेंट, कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसा टारगेट है आपकी लाइफ में जो आपको एक्साइट करता है, कीप वर्किंग ऑन इट. और इस पूरी जर्नी में वापस रेजिलियंस, जिसके बारे में शुरू में भी बात की, बहुत इंपॉर्टेंट है. रेजिलियंस का मतलब है बाउंसिंग बैक, वापस वही करना. तो इस वक्त ऑफ कोर्स कोरोना के कारण हमारे जीवन में हर चीज में एक डिप आया है, हम सब नीचे गए हैं, बट द ओनली वे टू बाउंस बैक इज टू कनेक्ट विद आवर रेजिलियंस. और उसके लिए भी एक छोटा सा एक्रोनिम है, रैपिड. रैपिड का मतलब है जो लोग रेजिलियंट होते हैं वो रैपिड होते हैं. आर फॉर रिफ्लेक्शन, मतलब वो सोचते हैं कि क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, और उसमें आगे वो क्या कर सकते हैं. र्यूमिनेट नहीं करते. जो लोग लो ऑन रेजिलियंस होते हैं वो र्यूमिनेट करते हैं. र्यूमिनेट का मतलब एक ही चीज को सोचते रहना, विक्टिमहुड में रहना, ये सोचना मैं तो बहुत अनलक्की हूँ, बेचारी मैं, बाकी सब तो बहुत लक्की हैं, ये हो गया, वो हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो इट्स इंपॉर्टेंट, reflect on things that are right or wrong. Don't ruminate. Be aware. Awareness is important. चीजों को कारपेट के नीचे नहीं कर देना, सप्रेस नहीं करना, दबा नहीं देना, पर अवेयरनेस जरूरी है कि ये चीज ऐसी है, कोरोना टाइम्स में ये प्रॉब्लम्स आएंगी, पर हम उनको एक्सेप्ट करते हैं, विच इज द नेक्स्ट ए. और फिर उसको सॉल्व करेंगे थ्रू दी ऑनलाइन मीडियम. आई थिंक हम सब टीचर्स बहुत हैप्पी थे क्लासरूम टीचिंग के साथ, पर जैसे ये कोरोना ने हमारे को चैलेंज दिया, वी ऑल हैव मूव्ड टू ऑनलाइन मोड्स. बच्चे पहले हमसे कहीं ज्यादा ऑनलाइन चीजें करते थे, हम टीचर्स कम करते थे, लेकिन नाउ आई थिंक स्लोली ग्रेजुअली ऑल ऑफ अस, irrespective of our age and stage, we are all kind of moving and learning about this online education, and we are getting familiar with a lot of technology. So it's very important कि आप रिफ्लेक्ट करें, सोचें, अवेयर हों, एक्सेप्ट करें कि ये एक चैलेंज है, उसको सॉल्व करें, प्रॉब्लम को, उससे इंसाइट लें, समझें कि मुझे क्या करना है, और इस पूरे प्रोसेस में जो इमोशंस आती हैं उनको इंटेलिजेंट ढंग से हैंडल करें. डीलिंग विद इमोशंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम लोग उसको बहुत दफा इमोशनल इंटेलिजेंस भी कहते हैं, बट इट्स इंपॉर्टेंट टू बी कनेक्टेड टू योर इमोशंस. सो अगर आप अपनी अकम्पलिशमेंट्स के ऊपर काम करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने गोल्स को मीट करें अभी, और जब ये कोरोना खत्म हो जाएगा, जो कि आई एम वेरी होपफुल जल्दी होगा, वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें अपना कनेक्ट, हमें अपना इम्पोर्टेंस नहीं छोड़नी रेजिलियंस को लेके. रेजिलियंस से अगली स्टेज होती है थ्राइविंग. थ्राइव होता है कि हम रेजिलियंस के भी पार, जैसा पहले कर रहे थे उससे कहीं ज्यादा बेहतर करेंगे. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप अकम्पलिशमेंट की बात करें, गोल्स की बात करें, बी रेजिलियंट, बी स्ट्रांग. और रेजिलियंस के लिए भी आप देखेंगे वापस हम घूम फिर के उसी सर्कल में घूमते जा रहे हैं. रेजिलियंस के लिए भी हमारे कनेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे रिलेशनशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे थॉट प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे जीवन में मीनिंग और पर्पस होना, एंगेजमेंट होना बहुत जरूरी है, और फिजिकल एंड मेंटल वेलनेस बहुत जरूरी है. सो थैंकफुली इस वेबिनार में जो भी अगले सेशंस हैं उनमें भी हम इस सर्कल में घूमते घूमते यू विल सी दैट यू आर ब्रॉट टू अ पॉइंट वेयर यू एक्चुअली हैव टूल्स टू डील विद दीज. एंड फाइनली अकम्पलिशमेंट्स में जरूरी है, और सबसे जरूरी चीज है ऑप्टिमिज्म. हैव एन ऑप्टिमिस्टिक स्टाइल ऑफ थिंकिंग. ये भी रिसर्च ने दिखाया है कि पीपल हु आर ऑप्टिमिस्ट आर जनरली हैप्पी, एंड पीपल हु आर पेसिमिस्ट आर राइट.
कि जो आप निराशावादी बात सोचते हो ना, वो तो सही हो जाती है। जो ऑप्टिमिस्ट लोग होते हैं, जो आशावादी लोग होते हैं, जो हर बुरी चीज में भी कुछ अच्छा देख सकते हैं, जो अंधेरे के बाद रोशनी, रात के बाद दिन, ऐसा सोचकर चलते हैं, they get more energy, they get more vitality to work towards their goals. So इसलिए बहुत जरूरी है कि ऑप्टिमिज्म और आशा के साथ हम फ्यूचर की तरफ चलें, एंड थ्रू आउट दिस जर्नी वी हैव टू कीप आवर सेल्फ एस्टीम इंटैक्ट। जरूरी है कि हम खुद के बारे में क्या समझते और सोचते हैं वो हम उसके ऊपर खास फोकस रखें। हम में से बहुत सारे ऐसे शेर और शेरनियां हैं जो खुद को बिल्ला या बिल्लियां समझते हैं, और बहुत सारे ऐसे बिल्ले बिल्लियां भी हैं जो खुद को शेर शेरनियां समझते हैं। हैव अ रियलिस्टिक सेंस ऑफ योर सेल्फ, रियलिस्टिक आइडिया ऑफ योर वेल्थ, वर्क ऑन योर सेल्फ, बी रेडी टू वर्क ऑन योर सेल्फ एंड इम्प्रूव। तो जो अकम्पलिशमेंट की बात है, प्लीज रिमेंबर दैट आर अकम्पलिशमेंट्स, जब जब आप कोई छोटी सी चीज भी अचीव करते हो, वो एक तरह आपको एक सिग्नल भेजते हैं कि ओके आई कैन कंट्रोल छोटी चीज। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि यार मैं तो खाना नहीं सुबह खाता, सो एक दिन जब आपने ब्रेकफास्ट समय पे किया, गिव योर सेल्फ अ पैट ऑन योर बैक, टेल योर सेल्फ वेल डन, एक चीज अकम्पलिश की आपने। छोटी छोटी चीजों से शुरू करें एंड गेट कंट्रोल ऑन योर लाइफ। हर अचीवमेंट आपके सेंस ऑफ कंट्रोल को बढ़ावा देती है। एक्सरसाइज करें, कुकिंग करें, लोगों को चिट्ठी लिखें, कन्वर्स विद पीपल, लोगों से बात करें, लोगों को बताएं दैट यू लव देम। ऑल दीज थिंग्स गिव यू अ सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, आपकी हैप्पीनेस बढ़ाती हैं और आपकी मेंटल हेल्थ को इंटैक्ट रखती हैं। और इस पूरी जर्नी में हम कोरोना में बड़े परेशान रहे, बड़े नेगेटिव रहे, रिमेंबर द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमर, रिमेंबर द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेफुलनेस। हंसना मत छोड़िए। जब हम हंसते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत सारी बायोकेमिकल चेंजेस होती हैं, और वो चेंजेस, जैसा मैंने एक कहा, हैप्पी हार्मोन एंडोर्फिन पैदा होता है। तो जो लाफ्टर योगा करते हैं लोग, सुबह सुबह पार्क्स में खड़े होकर ऊंची ऊंची हंसते हैं, उसमें एक बेसिक बायोलॉजिकल मैकेनिज्म होता है कि अपनी बॉडी में वो एंडोर्फिन उत्पन्न कर रहे हैं, जो आपके स्ट्रेस को कम करता है, हैप्पीनेस को बढ़ाता है और आपकी कोपिंग की क्षमता को भी बेहतर करता है। जब हम ह्यूमर का इस्तेमाल करते हैं, उससे हमारी सेंस ऑफ वेलबींग बेहतर होती है, हमारी क्रिएटिविटी इंप्रूव होती है, हमारा स्ट्रेस घटता है। अगर हमें कुछ बदलाव से हम जूझ रहे हैं, जो कि अभी जूझ रहे हैं कोरोना के कारण, और पोस्ट लॉकडाउन क्या क्या, पोस्ट कोरोना क्या क्या होगा, उस चेंज को मदद करने के लिए या तो आप उसके बारे में रो सकते हो या हंस के खुली बाहों से स्वीकार कर सकते हो। सो व्हेन यू यूज ह्यूमर, इट मैक्सिमाइजेज योर मेमोरी, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होती है और आप बेहतर एडजस्ट कर पाते हैं। हमने इस दौरान कितने जोक्स देखे। आई थिंक कोरोना अगर बहुत सारी और चीजों के लिए जाना जाता है तो बहुत सारे जोक्स के लिए भी जाना जाता है। ऑनलाइन क्लासेस में कम लेट एंड स्लीप साइलेंटली, ओ आई कैन नॉट हैव कोरोना, हैव अ बडवाइजर, एंड देन आज कौन सा वेबिनार है, उठो अनारकली, वेबिनार खत्म हुआ, क्या क्या नहीं कोरोना के टाइम में ह्यूमर आया, एंड वी हैव ऑल लाफ्ड एट दिस। सो रिमेंबर, laughter and humor keeps us sane, it keeps us going। हमारे को हंसने के लिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, आसपास बहुत कुछ है जो आपकी हंसी गवर्न कर सकता है, निकाल सकता है। सो डू नॉट underestimate these small little events, laugh to your heart's content। And another important final thing, please give a lot of validation to people while they are living and while you are living। Don't wait for those last 5 minutes to validate their existence। Apni well-being during corona and later than after corona, it's important to keep your relationships with yourself. And I think a very powerful meditation that I use and I recommend a lot of people to do so are these 4 lines. Every day in the morning or in the evening, whatever time suits you, say these words to yourself thrice, at least thrice. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. This has gratefulness, this has relationships, this has empathy, this has compassion, this has forgiveness, this has engagement, this has everything. This is a Japanese technique, and people who've been practicing this have reported a lot of acceptance, a lot of peace and calmness. So we all know that we cannot go back and change the beginning, but we definitely can start right where we are and we can change the ending. तो हमें गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस, WHO की गाइडलाइंस, वो सब तो फॉलो करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ अपने दिल, दिमाग
और mental well-being का ध्यान रखना है most difficult times. But don't forget the famous Newton's third law. We are invincible. The human spirit also follows this law. To every action there is equal and opposite reaction. So let's bounce back, get our resilience and bounce back and act. I'm repeating this one. Fear and action cannot coexist. From this little conversation, the little talk that we had today, I strongly urge you to pick up any one or any two or any three and start using them on an everyday basis. Take your dose of PERMA every day without fail. And I can guarantee you, if you pick up one for P, one for E, one for R, one for M, one for A, you will have the sixth one, H, health, mental and physical health. So do not underestimate the importance every day. Ensure your health now, during COVID, and after Ma'am, your voice, COVID times when you are back to your normal. ma'am, your voice, Hello? ma'am, your voice was breaking. We couldn't hear the last sentence. Okay. So I was right here where I said, now is it okay, Manu? Dr. Yes. Manu, is that fine? Yes, ma'am, perfect. Yes, ma'am. Perfect. All right. So I was just stopping at this, that we need to take these 5 things every day, our daily dose of PERMA, to ensure health, physical and mental for us, and eventually come back to our normal lives very soon as thrivers, as people who fought this by finding the right balance. Keep the dose of PERMA every day with yourself, and thank you for not sleeping. And I hope I haven't made a lot of you cry. And I hope, Dr. Manu, I've kept my time. Yeah, thank you. Thank you so much, ma'am. Dr. Manu, am I audible? Yes, it's Okay. perfect. You're Thank audible. you so much, ma'am. And the presentation was a wow presentation. In fact, very creative, illustrative, and what was required was optimism. So the optimism was so much there that, the chat box was buzzing all the time. People are so grateful to you. Actually, everybody needed this dose of optimism. Thank you so much, ma'am. In fact, I think we all have benefited from your lecture. It was a wonderful discourse. And, especially that Mona Lisa representation of the quarantine stages. It was so creative. And, we want a smiling Mona Lisa always. Thank you so much, ma'am. And in fact, your presentation, it touched upon all the issues, be it mental well-being, physical well-being, or be it, taking care of others. So it was really very comprehensive. Thank you so much from the core of Thank you so much. Thank you so Thank much. you.